اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک یقینی، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جان لیا تم نے، علم دیا ہم نے ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے لوگ تھے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کا علم، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو حد سے نکلنے والے تھے۔ کس بات میں حد سے نکلنے والے تھے؟ فی السبت، سبت میں، سبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، فی السبت ہفتے والے دن کو۔ اللہ کی ذات نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے والا دن 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا تھا۔ وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اس ایک ہفتے والے دن۔ آج دیکھیں اس امت کے لیے اللہ کی ذات نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، جو رحمت للعالمین ہیں، کہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کی نماز کا وقفہ ہوتا ہے، وہ پڑھ کے اس کے بعد انسان حلال رزق کمائے، جتنا مرضی ہے کمائے، جتنے وقت کے لیے مرضی ہے کمائے۔ دیکھیں سورہ جمعہ خصوصی اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جب جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ساتھ ذکر بھی کرو۔ اللہ کو بولنا بھی نہیں ہے، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق تلاش کرو۔ لیکن ان کے لیے تھا کہ وہ پورا ہفتے والا دن جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ جو اب حد سے نکلے، جو ہفتے والے دن کے، ان میں سے ایک گروہ، فَقُلْنَا تو بس کہا ہم نے، لَهُمْ ان کے لیے، کونو ہو جو، قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر، قِرَدَةً بندر، خَاسِئِينَ ذلیل۔ تو اللہ نے اس بات کو اتنا ناپسند کیا اور ان کے لیے فوری طور پہ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ بندر بن گئے، اور انسان سے بندر بننا ویسے ہی بڑی ذلت کی بات ہے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ اس کے اندر جو علماء حکمت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہیلوں بہانوں سے توڑنا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ بھی جاتا ہے، انسان اس سے توبہ بھی کر لیتا ہے، رجوع بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو اس طریقے سے توڑنا کہ سمجھے کہ نہیں ٹوٹ رہا، دل میں پتہ ہے لیکن ظاہراً نہیں ٹوٹ رہا، تو ہیلے بہانے بنا کے زکوٰۃ سے بچنا، نماز سے بچنا، روزے سے بچنا، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر صاحب استطاعت کر دی ہے تو حج سے بچنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہیں کہ اللہ کے حکموں کو ہیلوں بہانوں سے توڑا جائے۔ جیسے کچھ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے نا، لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ ہیلا بہانا ہے کہ جس کو اللہ نے صاحب استطاعت کی ہے، گھر میں اگر اس کے پاس کوئی زیور اس طرح کی چیز موجود ہے، تو وہ 1 سال سے پہلے جو ہے وہ ایک ملکیت، میاں جو ہے وہ بیوی کو، یا بیوی جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ والدین کو، اور والدین بچوں کو ملکیت بدلتے رہتے ہیں، اور نہ سال پورا ہونے دیتے اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کے ہیلے بہانے آج بھی دنیا میں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی ذات کو یہ بہت ناپسند۔ آپ دیکھیں ان کو اللہ کی ذات نے شرک بھی معاف کر دیا، لیکن یہاں پہ ان کو معاف نہیں کیا، اور اللہ نے ان کو دنیا کے سامنے بندر بنا دیا۔ اور بندر بنانے کا پھر اللہ کی ذات ہمارے لیے کیا عبرت ہے، جو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ تو بنا دیا ہم نے، یعنی اس واقعے کو اللہ کی ذات نے بنا دیا، نکالن عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہ جو ان کے سامنے تھے، کیونکہ پورا بنی اسرائیل تو نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر ایک گروہ تھا جس نے یہ کام کیا۔ تو وہ جو لوگ اس وقت موجود تھے
उनके सामने अल्लाह की ज़ात ने उनको इबरत बना दिया कि अल्लाह के हुक्मों की इस तरीके से नाफरमानी की जाए कि नाफरमानी भी हो और आप उसको नाफरमानी ना समझें, दिल से तो पता हो लेकिन ज़ाहिर ना हो, तो उनके सामने भी बना दिया अल्लाह ने इबरत उनको। वमा खल्फहा, और जो उसके बाद आने वाले लोग होंगे, और उसके बाद आने वाली बनी इसराइल की नस्ल भी थी। आज चूँकि ये कुरान में मौजूद है तो हम भी उसके बाद आने वाली कौम है कि हमें भी ऐसी बातों से इबरत हासिल करनी चाहिए जहाँ हम अल्लाह के हुक्मों को किसी मसलहतन, किसी अपने दुनिया के मनफियत के लिए, फ़ायदे के लिए उसको तोड़ते हैं। तो अल्लाह की ज़ात ने जो मौजूद लोग थे उनके सामने उनके लिए बिरत बना दिया, और आने वाली जो कौमें हैं उनके लिए भी। वह मौइज़तन, और इसमें बहुत बड़ी नसीहत है अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह की किबरियाई की, कि अल्लाह के हुक्मों को इंसान इस तरीके से अगर रौंदे तो इसमें बहुत बड़ी नसीहत है। मगर हासिल कौन के नसीहत? लिलमुत्तकीन, जो अल्लाह से डरने वाले, जो सलीमुल फितरत लोग हैं, जो अल्लाह को बड़ा जानते हैं, जो अल्लाह की किबरियाई को, जिसको अल्लाह ताला बहुत बुलंद ज़ात है, जो उसको जानते हैं, तो ये उनको इबरत हासिल होगी। जो गधों की तरह अकल रखते हैं, आंखें रखते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, और उनके कान ऐसे ही हैं कि जैसे जानवरों के, उनको इससे इबरत नहीं मिलेगी। इबरत मिलेगी जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाले हैं। अब एक और वाक़े का जिक्र हो रहा है इन्हीं की कौम का। वइज़ क़ाला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही, अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू, ये कि तुम ज़बह करो, बकरा, गाय को। अब यहाँ पे ये वाक़या है कि बनी इसराइल के अंदर एक मालदार शख्स था जिसकी औलाद नहीं थी, और उसने अपने एक भतीजे को पाला हुआ था। ये इसराइली रवायात से उलमा ने हमें बताया है। उसका कत्ल हो गया। अब मुख्तलिफ लोगों पे उसका इल्ज़ाम लगा, कई लोग जो शहर के लोग थे उन पे कि फ़लाँ ने किया होगा, उसने किया होगा, इसने किया होगा। तो अल्लाह की ज़ात ने इस चीज़ को दूर करने के लिए उन पे एक आजमाइश भी डाली, और ये पूरा वाक़या जैसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो गाय का ज़बह करने का हुक्म दिया गया, और बनी से जिस तरीके से उसके अंदर से बातों पे बातें निकालती गई, करती गई, तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगती गईं। और उस गाय को ज़बह करने के बाद जब उस मुर्दा शख्स की लाश के साथ उस गाय का एक टुकड़ा लगाया, वो जिंदा हो गया, और उसने अपने मकतूल का बताया, और उसके बाद वो मर गया। बात यह है कि अल्लाह की ज़ात किसी भी तरीके से ज़ाहिर कर सकती थी, उसको वैसे ज़िंदा करके सारा कुछ बता सकती थी, लेकिन बनी इसराइल के रवैयों का जिक्र हो रहा है, और इसलिए जिक्र हो रहा है कि ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इन चीज़ों से बचना है, इससे नसीहत हासिल करनी है। कालू, कहा, उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, क्या आप बना रहे हैं हुज़ुवा, मजाक। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुम एक गाय को ज़िबा करो, तो जवाब में कौम ने कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देगा? अल्लाह जो चाहे हुक्म दे, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह बादशाह है। काला, कहा उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की, अन, ये कि, अकूना, मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, कम इल्म लोगों में, बे इल्म लोगों में, जाहिल लोगों में। नबी कभी भी कोई बात इस तरह की मजाक में नहीं करते, और फिर अल्लाह की तरफ मंसूब करके जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह हुक्म दे रहा है ज़बह करने का, कि गाय को ज़बह करो, तो नबी कैसे अल्लाह की ज़ात की तरफ मंसूब करके कह सकते हैं और मजाक कर सकते हैं? उन्होंने कहा नबी की ये शान नहीं है कि वो इस तरह के मजाक करे और अल्लाह के हुक्म दे कि अल्लाह कह रहा है और वो अपनी तरफ से कह रहे हो या मजाक करो, नऊज़ुबिल्लाह। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करूं तो फिर मैं तो बहुत बेइल्म हो जाऊँ, और नबी के इल्म की तो इंतहा होती है जो अल्लाह की ज़ात ने उनको अता फरमाया होता है। क़ालू, कहा उन्होंने, अदउ लना, दुआ करें, पुकारें, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबैय्यिन लना, कि वाज़े कर दें, युबई बैन, वाज़े कर दें, लना, हमारे लिए, माहिया, कैसी हो वो। अब देखें बात वही शुरू हो गई ना, वरना अल्लाह का हुक्म था गाय ज़बह करें, गाय ज़बह कर देते, जैसे कि सुन्नत इब्राहीमी में यहाँ पे भी है कि जी आप बकरा, गाय, भेड़,
जो भी अल्लाह ने दिया है आपको, जो मुयस्सर है, जो आपकी इस्तिताअत है, ज़बह करें। तो उन्होंने बजाय उस बात के करने, उन्होंने कहा जी अल्लाह से पूछें, अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए कि हम गाय कैसी ज़बह करो। काला, कहा, अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह की ज़ात ने बता दिया। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, इन्नहा, बेशक वो, बकरतुन, गाय हो, ला फारिज़न, ना बूढ़ी हो, वला बिक्र, और ना ही वो छोटी हो। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि वो गाय उम्र में ना तो बड़ी हो और ना ही वो बिल्कुल छोटी हो, क़वानुन, औसत उम्र की हो, बैन ज़ालिक, इन दोनों के दरमियान, यानी बुढ़ापे में और उसकी छोटे होने की जो उम्र है उसकी दरमियानी हो, यानी नौजवान हो और इनके दरमियान हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, अल्लाह के नबी उनको समझा रहे हैं कि देखो, फ़फ़अलू, पस कर गुजरो, मा, जो, तुअमरून, जिसका तुम हुक्म दिए जा रहे हो, जो हुक्म अल्लाह की ज़ात तुमको दे रही है, अब उसको कर लो, इसमें से और मेन मीख जो है वो न निकालो। लेकिन चूंकि वो बिगड़े हुए लोग थे और नबी, अपने नबी को वो परेशान कर रहे थे, उनकी बात ख़त्म नहीं हुई। कालू, कहा उन्होंने, अदउ लना, दुआ करें हमारे लिए, पुकारें हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब को, युबय्यिन लना, ताकि वो और वाज़ेह करे हमारे लिए, मा लौनुहा, कि उसका रंग कैसा। अब अल्लाह की ज़ात ने जब नहीं कहा था तो जिस रंग की मर्जी है वो कर देते, जो मर्जी है कर देते। अब उन्होंने खुद ही उसमें से हुज्जत निकाली, हुज्जत पे हुज्जत निकाली कि अल्लाह की ज़ात से, ए मूसा अलैहिस्सलाम, दुआ करें कि उस गाय का रंग कैसा हो, वो किस रंग की हो जिसको हम ज़बह करें। अब ये अल्लाह के साथ मोहब्बत में नहीं कर रहे, ये नबी के साथ हुज्जतें कर रहे थे। अल्लाह तो जानता है। फ़ाक़िन, काला, कहा, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, फरमा रहा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह की ज़ात ने उसको जवाब दिया, और वो अल्लाह के नबी बता रहे हैं जो अल्लाह की ज़ात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें इस कुरान में बता रही है। काला इन्नहु यक़ूलु, कहा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कि बेशक फरमाता है मेरा रब, इन्नहा, बेशक वो, बकरातुन, गाय हो, सफराउ, जर्द रंग की, गहरे जर्द रंग की, इस रंग की गाय हो, फाक़िन, खूब गहरा, लौनुहा, रंग इसका, तसुर्रुन नाज़रीन, तसुर्रन, भला लगे, जैसे देखें तो वो अच्छा लगे, लिन नाज़रीन, देखने वालों के लिए, और वो पीला रंग भी ऐसे हो, जर्द रंग ऐसे हो कि जब देखें तो वो आंखों को बहुत भला लगे। अब आगे चल के मुफस्सिरीन इसी वाक़या में बताते हैं कि ये गाय उनकी करते करते उनकी सारी तशबीहात जब मिली तो एक ऐसी गाय के साथ मिल गई जो एक बनी इसराइल का बहुत नेक इंसान था और उसका अभी बच्चा छोटा था और वो उस मर गया, खुद उसको मौत आ गई, उसकी उम्र ख़त्म हो गई। तो उसने अपने रब से दुआ की कि या अल्लाह, ये मेरे जो बच्चा है पीछे जो रह गया है, ये मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, मौत आने वाली चीज़ है, मुझे मौत आ गई है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे हवाले। तो अल्लाह की ज़ात ने उसके घर में वो एक गाय पैदा हुई जिसको वो बच्चा चराता रहा, वो बड़ी हो गई। बड़ा होने के बाद अब ये सारी करते करते उस निशानियाँ उस गाय में पूरी हुई और उसकी मुंह मांगी कीमत उसने अपनी मर्जी की ली, और अल्लाह ने वो जो उसके बाप की दुआ थी और उस नेक शख्स की दुआ थी उसके बदले में अल्लाह की ज़ात ने इसकी जो दुनियावी ज़रूरियात की किफ़ालत थी वो भी फरमा दी, और बनी इसराइल की जितनी हुज्जतें हैं उनको भी उस चीज़ की आगे चल के सज़ा मिली। तो ये अल्लाह की हिकमत होती है कि जब माँ बाप नेक होते हैं, वो अच्छे काम करते हैं और उनकी तरबियत अच्छी होती है, रिज़्क़ हलाल अपनी औलाद को खिलाते हैं, तो उनकी दुआओं में इतना असर होता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी औलादों पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। वालिदैन की दुआएं इतनी कीमती होती हैं कि अगर इंसान को ये तसव्वुर भी आ जाए अपनी ज़िंदगी में, तो इंसान अब कभी वालिदैन की नाफरमानी ना करे। लेकिन अफसोस ये है कि ना हमने कुरान पढ़ा, ना हमने कुरान सीखा, ना हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, बस पढ़ रहे हैं, इसकी रीडिंग करते जा रहे हैं, इसके मानी तर्जुमा समझते नहीं हैं
कि हमें ये समझ आ जाए तो हम अपनी दुनिया में भी मकाम बना लें, दुनिया में भी इज़्ज़त मकाम हमें मिल जाए, और आखिरत में भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो वालिदैन के फर्माबरदार होंगे उनकी बड़ी अज़मत है। आगे जब 10 कमांडमेंट्स हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जो अल्लाह ने हर उम्मत को अता फरमाई, हमें भी है, तो उसमें वालिदैन की नाफरमानी और वालिदैन की फर्माबरदारी का तरीका सारा के सारा अल्लाह की ज़ात ने हमें सिखाया है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।